Is my voice clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Come to our topic. So let's start. Come to our topic. So, yesterday, students, we saw that grandfather, Mr. Roshan Nath ji, learned a lot of things from his family members. हम सब लोग भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं. Our family हम सब लोग अपने फैमिली मेंबर से सीखते हैं ना. In the same way, Roshan Nath ji also learned a lot of things from his family members. Okay. So, can you name a few things which he learned? Like catching snakes. सर कुछ समझ में नहीं हो रहा है. सांपों को पकड़ लेना, कैचिंग स्नेक्स. रोशन नाथ जी ने अपने फैमिली मेंबर से क्या सीखा? कैचिंग स्नेक्स, रिमूवल ऑफ फैंग्स, जहरीले दांतों को, विष दंतों को बाहर निकाल देना, एंड हाउ टू ब्लॉक द पॉइजनस ट्यूब्स ऑफ द स्नेक्स. स्नेक्स के पॉइजनस ट्यूब्स को ब्लॉक कर देना. और क्या सीखा था उन्होंने? और क्या सीखा था? We also learned to recognize the herbs from the forest and to prepare medicines from the herbs which are found in the forest. Okay. Now, he was also very happy by helping people around him in his own way. अपने तरीके से रोशन नाथ जी बहुत खुश थे सहायता करके. अलग अलग तरह से वो लोगों की हेल्प करते थे. कभी जब फार्मर्स भागते हुए आते थे उनके पास, शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए स्नेक को देखने के बाद, तब रोशन नाथ जी बड़ी आसानी से स्नेक्स को कैच कर लेते थे, पकड़ लेते थे और उनको फार्मर्स को हेल्प करते थे. In the same way, he also helped them by giving medicines on time. And a snake has bitten someone, he also helped them by entertaining them. मनोरंजन भी किया करते थे उन लोगों का. Now students, we will start our next paragraph on page number 17. So look at your book. I hope you all are ready with your textbook. We have done the question answers of the page number 17, and now we will start next paragraph. Yes, sir. So be quiet and listen carefully. What can we do? हम क्या कर सकते हैं? What can we? सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं. Aganath, your father used to travel with me ever since he was a young child. Now, grandfather says, grandfather कहते हैं, किसको बता गए हैं ये? अपनी कहानी अपने ग्रैंडसन को, मिस्टर आगेनाथ को बता रहे हैं. क्या कहते हैं वो? आगेनाथ, your father used to travel with me ever since he was a young child. जब वो बहुत छोटे थे तब से वो मेरे साथ यात्रा किया करते थे. He learned to play the bean without being taught. और वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनका इतना सीखने में इंटरेस्ट था कि वो बहुत सारी चीजें बिना सिखाए सीख जाते थे. मॉर्निंग सर. वो बहुत सारी चीजें बिना बताए सीख जाया करते थे. He learned to play the bean. उन्होंने बीन सीख लिया था without being taught, बिना किसी के भी सिखाए हुए. These days it is difficult. आज के समय ये सच में बड़ा मुश्किल काम है. जब हम लेसन पढ़ते हैं तो बच्चे अपनी ही एक्टिविटीज में व्यस्त रहते हैं instead of listening like you. But on those days, Aganath ji learned number of things without being taught. बिना सिखाए हुए उन्होंने चीजों को सीखा, क्योंकि वो चीजों को ऑब्जर्व करते थे, वो चीजों को ध्यान से सुनते थे. उन्होंने देखा था कि बीन कैसे बजाई जाती है और उन्होंने बिना किसी के सिखाए हुए ये आर्ट सीख लिया था. इट इज डिफिकल्ट. लेकिन आज के समय ये बहुत ही मुश्किल है. मुश्किल क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग. वी डू नॉट हैव पेशेंस टू लिसन.
Now the government has made a law. आज गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है. These days it is difficult, and now the government has made a law that no one can catch wild animals. आज गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता है. No one can catch wild animals and keep them. और ना उनको आप अपने साथ रख सकते हो. Some people kill the animals and sell their skins at high price. गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ क्यों बनाया, ऐसा रूल क्यों बनाया? To protect the animals. Because you have seen in the last chapter that hunters, poachers used to kill animals for their skin, for their precious parts of bodies to sell in the market, and they earn money by doing this activity. And so government has made the law to protect these wild animals. इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि कोई भी जानवरों का शिकार न कर पाए, उनको मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को बाजार में बेचने का काम न करे, just for earning money. So they made a law against this. और इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि कोई भी आदमी एनिमल्स को ना तो पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने साथ रख सकता है. Now with this law, how will we earn our livelihood? Now students, अब आपने तो एक तरफ देखा कि कुछ लोग जो है जानवरों को ट्रीट करते हैं, परेशान करते हैं, उनको किल करते हैं just to earn their money by selling their body parts. But on the same way, but on the other hand, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नेक चार्मर जैसे कि रोशन नाथ जी हैं, है ना, आर्यनाथ जी हैं, ये लोग उन एनिमल्स को हार्म नहीं करते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको किसी तरह से हर्ट नहीं करते. They just earn their livelihood by living with them, by spending time with them, है ना, and by doing work with them. उनके साथ काम करके वो अर्निंग करते हैं, वो उनको किसी तरह से हार्म नहीं करते, उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. We people have never killed snakes. अब यहाँ रोशन नाथ जी कहते हैं we people, हम लोगों ने have never killed snakes, हमने कभी भी स्नेक्स को नहीं मारा है, and sold their skin, और ना ही कभी मारकर हमने उनकी स्किन को बेचा है. People say that we keep the snakes in bad condition. अब लोग कहते हैं कि हम स्नेक्स को बैड कंडीशंस में, बुरे वातावरण में रखते हैं, उन्हें परेशान करते हैं. बट इट इज नॉट ट्रू, ऐसा सच नहीं है. इफ वी वांटेड, अगर हमने चाहा होता, इफ वी वांटेड, अगर हम लोगों ने चाहा होता, वी टू कुड हैव अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स. अगर हम चाहते तो हम भी बहुत सारा धन कमा सकते थे स्नेक्स को मारकर, उनकी स्किन को मार्केट में बेच करके, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, है ना. बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते हैं. स्नेक्स आर आवर ट्रेजर्स. ट्रेजर्स का मतलब क्या होता है बेटा? कोष, खजाना, वेल्थ, संपत्ति, है ना. तो स्नेक्स आर आवर ट्रेजर्स. सांप जो है हमारे लिए खजाना है, हमारा कोष है, हमारी संपत्ति है. ऐसा कौन कहता है? स्नेक चार्मर्स. मिस्टर रोशननाथ जी ऐसा बताते हैं कि स्नेक चार्मर, स्नेक उनके लिए ट्रेजर्स हैं, वैल्यूएबल थिंग्स हैं. सो दे नेवर किल स्नेक. He also said that we pass on from one generation to another. और वो ये भी बताते हैं कि वो इस खजाने को, इस ट्रेजर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं, है ना. We even give snakes. We even give snakes to our daughters when they get married. और रोशननाथ जी बताते हैं कि जिस तरह से हम अपनी बेटियों की शादी में उन्हें गिफ्ट देते हैं. Please mute them. So mute them only. सर आपका साफ नहीं आ रहा है. We even give snakes to our daughters when they get married. और रोशननाथ जी क्या कहते हैं कि हम उन लोगों को, अपनी डॉटर्स को उनकी शादी में जो गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट क्या होते हैं? स्नेक्स. बिकॉज यही हमारी संपत्ति है, यही हमारे लिए ट्रेजर है.
In our Kalbelia dance, we also have movements similar to the dance of the snake. और आगे गौशरनाथ जी बताते हैं कि स्नेक से वो इतने डीपली अटैच्ड हैं कि जो उनका ट्रेडिशनल डांस है, जिसको वो कलबेलिया डांस कहते हैं, उस डांस की जो मूवमेंट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो भी स्नेक्स के जैसी ही हैं. स्नेक्स जिस तरह से मूव करते हैं उसी तरह से उनके डांस के भी मूव्स या स्टेप्स होते हैं, है ना. सो दे डांस इन द सिमिलर वे एज द स्नेक्स मूव्स. आपने पहले भी देखा था फर्स्ट पेज में कि कैसे वो लोग स्नेक से रिलेटेड रंगोली अपने घरों में बनाते थे अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए. तो ये सारी चीजें बड़ा ये हमें बताती हैं कि सच में वो स्नेक से कितनी अटैच थे, कितना डिपेंडेंट थे वो एनिमल के ऊपर, इस एनिमल के ऊपर अपने लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए. आगेनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. अब गौशरनाथ जी आगे कहते हैं अपने ग्रैंडसन आगेनाथ को कि अब आपको अपने लिए एक नई लाइफस्टाइल अपनानी होगी, अपना जीवन यापन करने के लिए एक नया तरीका चुनना होगा, है ना. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, that no one can catch animals and no one can keep animals with them, isn't it? Now, तो गौशरनाथ जी क्या कहते हैं? आगेनाथ, you will have to make a different life for yourself. अब हमने जो अपनी जीवन शैली जिस तरह से जी है, हमने अपनी लाइफ को जिस स्टाइल में जिया है, उस तरह से आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. आपको एक डिफरेंट स्टाइल में अपनी लाइफ को जीना होगा. You have to live in different way. Now you have got your father's gift of playing the bean. आपने अपने फादर से गिफ्ट लिया है जो बीन को बजाना. How to play bean. You can use this art in earning your livelihood. You and your cousins can form a bean party and entertain people. आगे गौशरनाथ जी उनको सजेस्ट करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप अपने कजिन्स के साथ, अपने चचेरे ममेरे भाइयों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी को बना सकते हो, बीन पार्टी फॉर्म कर सकते हो और लोगों को आप एंटरटेन करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, है ना, बाय एंटरटेनिंग द पीपल. बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स. आगे गौशरनाथ जी ये भी सलाह देते हैं कि आप बेशक अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देना, स्नेक्स को आप अपने पास मत रखना, आप केवल बीन पार्टी बना करके एंटरटेनमेंट करके अपने लिए अर्न कर लेना. बट आपके पास जो स्नेक्स से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको आप वेस्ट मत करना. उस नॉलेज को आप यूज करना, उसको दूसरों के साथ शेयर करना, है ना. सो यू हैव गॉट whatever you have got from your elders. जो कुछ भी आपने अपने एल्डर्स से सीखा है उस नॉलेज को आप शेयर करोगे दूसरों के साथ. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद द चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज. आगे गौशरनाथ जी कहते हैं आपने जो नॉलेज स्नेक से रिलेटेड अपने एल्डर से लिया है उस नॉलेज को सिटीज में, टाउन्स में रहने वाले बच्चों के साथ शेयर करना, उन्हें बताना. ओके, टेल देम that they should not be scared of snakes. और उन्हें बताइए आप कि उन्हें सांपों से डरने की आवश्यकता नहीं है. Why? Because all the snakes are not poisonous. We have learnt already, है ना. All the snakes are not poisonous. हम ऐसा मान लेते कि सभी स्नेक्स पॉइजनस हैं और फिर स्नेक दिखते ही बिना सोचे विचारे झट से उसको मार डालो. ओके, तो it is not true that all the snakes are poisonous. Now he also asked him to help the other children of the towns and cities to recognize poisonous snakes. अब गौशरनाथ जी ये भी कहते हैं अपने ग्रैंडसन को कि टाउन्स में, सिटीज में रहने वाले बच्चों को ये बताओ कि कैसे पॉइजनस स्नेक्स को पहचाना जाए, कौन से स्नेक्स पॉइजनस हैं, कौन से स्नेक्स पॉइजनस नहीं है, इसे हम पहचान सकते हैं. तो बच्चों कुछ पॉइजनस स्नेक्स की पिक्चर्स आपकी बुक में दी हुई हैं. आप पेज नंबर
20 पर देख सकते हो. Here you can see it. Here you have seen 4 pictures of the snakes, है ना. स्नेक्स की 4 पिक्चर्स हैं, उनके नीचे नाम भी दिए हुए हैं, अफाई, कोबरा, क्रैत, दुबोया, है ना. So these are the poisonous snakes, है ना, which you can recognize. आप इनकी फिगर को देख करके पहचान सकते हो. We will learn in detail about these snakes in our this lesson later, है ना. Now, he also, Roshan Naji asked, request his grandson to teach other students, to tell other students and other children of the towns and cities how to recognize the poisonous snakes and to tell them snakes are friend of the farmers. वो ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ स्नेक्स सभी पॉइजनस नहीं होते हैं, बल्कि स्नेक्स जो हैं फ्रेंड्स भी होते हैं फार्मर्स के, ये किसानों के मित्र भी हैं. अब कैसे हैं ये किसानों के मित्र, देखिए. They eat the rats in the fields. Hello. They eat the rats in the field. वो खेतों में रहने वाले चूहों को खा जाते हैं. Otherwise rats would eat the crops. और यदि स्नेक्स ऐसा न करें तो क्या होगा? They will finish the crops grown in the farm. खेतों में उगने वाली फसल को चूहे खत्म कर देंगे, है ना, because of overpopulation of the rats. Now you tell our story. अब रोशननाथ जी ये भी कहते हैं अपने ग्रैंडसन से कि आप हमारी इस कहानी को अपनी आने वाली जनरेशन से शेयर कीजिएगा. You tell our story and also make a new story of your own life. और आप अपने जीवन की भी एक नई कहानी बनाइएगा and to tell your grandchildren, अपने grandchildren को बताने के लिए, है ना. So whatever our grandfather have done, we will tell to our next generation and we will also do something new, है ना, to tell to our next generation. Okay. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाए, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि सभी लोग एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. कुछ लोग एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव भी करते हैं, जैसे कि स्नेक चार्मर्स हैं, फार्मर्स हैं, पोल्ट्री फार्मर्स हैं जो मुर्गी पालन का काम करते हैं. इसी तरह से लोड कैरी करने वाले लोग हैं जो डोंकी, म्यूल वगैरह एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं और उनके साथ उचित बिहेव करते हैं ना, पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन देते हैं. दे फीड देम प्रॉपर्ली. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 19 you have some questions. I am going to write on the board. So take out your pen, pencil, paper and start writing your questions. Page number 19. Of your textbook. Here is the first question. Have you ever seen animals being used for entertainment of people? क्या आपने कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा है जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया गया हो? If yes, where, when, है ना, and which animal did you see? So देखिए, when and where did you see this animal? So first question number 1. Have you ever seen animals? Have you ever seen animals being used for entertainment? Being used for
entertainment. So have you ever seen animals being used for entertainment? क्या आपने कभी देखा है किसी एनिमल्स को entertainment के लिए, amusement के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होते हुए? If you have seen, when, where? Being used for entertainment. When and where? When and where? कब और कहां देखा आपने, है ना? So what will be the answer? Yes. Yes. I have seen. I have seen. Yes, I have seen. हाँ, मैंने देखा है. Animals. Yes, I have seen. I have seen animals being used for entertainment. Entertain. Not for T-A-I-N-M-E-N-T. Yes, I have seen animals being used for entertainment in a circus. In a circus, C-I-R-C-U-S, circus, and even on the even on the road. है ना? So revise it once again. Let's see this first question. Have you ever seen animals being used for entertainment? क्या आपने कभी एनिमल को देखा है जो मनोरंजन के लिए उपयोग हुआ? When and where? So the answer will be yes, I have seen animals. हाँ, मैंने जानवरों को देखा है being used for entertainment, जिनका entertainment के लिए यूज हुआ है. In a circus. कहाँ यूज हुआ इनका? सर्कस में. And even on the road. और यहाँ तक कि लोग सड़कों पे भी उनसे शो करवाते हैं, है ना? सड़कों पर भी शो करवाए जाते हैं. देखा आपने सड़कों पे शो करते हुए किसी को एनिमल्स के साथ? ओके, मंकी, बियर, है ना? नाउ विच एनिमल डिड यू सी? कौन से एनिमल्स को देखा है आपने सर्कस में या फिर रोड पर शो करते हुए? क्वेश्चन नंबर 2. विच एनिमल्स which animals show did you see? Did you see? तो क्या कहा जाएगा बेटा? which animal show, कौन से एनिमल का शो? did you see, आपने देखा था. तो I saw, मैंने देखा था. I saw the show of elephant, monkey, lion, parrot, etc. है ना? So many animals you can see in the circus. Some of them are, I saw the show of elephants, monkey, lion, parrot, etc.
है ना. Number of animals are there. Your next question is, how did people behave with the animals in the show? Question number 3. Question number 3. How did people behave? How did people behave? How did people behave with the animals in the show? Okay. In the show. Answer. So your third question is, how did people behave with the animals in the show? लोग उन एनिमल्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं शो में. So your answer will be, people okay. I hope you have done the first question. So let me erase it once. Answer of your third question. People behave properly with the animals and they also people behaved properly with the animals and they also clapped after seeing the show. है ना. जब उनका एंटरटेनमेंट हुआ तो उन्होंने उस शो को देखने के बाद क्लैप भी किया था. Was anyone teasing the animals? Your next question is question number 4. Question number 4. Was anyone teasing? Teasing means परेशान करना, इरिटेट करना, है ना. Was anyone teasing the animals? Animals? How? तो जब आपने शो देखा था तो क्या आपने देखा कि कोई आदमी उनको टीज भी कर रहा था, उन एनिमल्स को परेशान भी कर रहा था? तो आई होप you haven't seen anyone teasing the animals. So what will the answer? No. No one was teasing the animals.
कोई भी उन जानवरों को परेशान नहीं कर रहा था. ओके. Your next question is, what kind of questions came to your mind after seeing that animal show? Question number 5. Question number 5. What kind of questions came to your mind? आपके दिमाग में, आपके मन में कौन से प्रश्न आए आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो. तो उन एनिमल्स के शो को देखने के बाद आपके मन में कौन से प्रश्न उठे? आपने क्या सोचा? So you can write here answer. After seeing the animal show, after seeing the animal show, I thought THOUGHT, I thought if these animals, after seeing that animal show, I thought if the animals are these animals also happy? Are these animals also happy while happy in this? After seeing the animal show, I thought, are these animals also happy? Now imagine that you are in an animal cage. So these are the 5 questions, students. What kind of questions came to your mind after seeing that animal show? उस animal show को देखने के बाद आपके मन में कौन से प्रश्न आए? After seeing the animal show, उस show को देखने के बाद I thought, मैंने सोचा, are these animals also happy? कि क्या ये जानवर भी खुश हैं? Imagine that you are in an animal cage. अब जगह आप कल्पना कीजिए कि आप भी एक एनिमल केज में हो, एक पिंजरे में हो. And think how you would feel and complete the following sentence. And you have to complete the sentences given in your book. Okay. So students, in our next question, it is given that I am afraid when. मैं डरा हुआ था, और कब डरा हुआ था आप बता सकते हो? It is the situation of an animal in the cage. एक पिंजरे में जब जानवर बंद होता है तो वो सिचुएशन यहाँ दी हुई है.
आप ये कल्पना करो कि आप भी केज में हो, आप पिंजरे में हो, और उस समय आप कैसा महसूस करते हो, आप कब अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हो? आई एम अफ्रेड व्हेन, कब आप डरा हुआ महसूस करोगे? व्हेन योर ट्रेनर बीट्स यू फॉर द मिस्टेक यू हैव डन, आपने आपसे कोई गलती हो जाए और आपका ट्रेनर आपको पीटने लगे, आपको पनिश करने लगे, तो हमें आपको नेचुरली डर लगेगा। आई विश, मैं चाहता हूं, अब मैं क्या चाहता हूं? आई विश आई कुड रन अवे फ्रॉम द केज इनटू द नेचुरल हैबिटेट, इनटू द फॉरेस्ट। मैं ये चाहूंगा कि मैं वापस भागकर जंगलों में चला जाऊं। आई एम सैड, मैं दुखी होता हूं। आप बता सकते हो कि एनिमल कब दुखी होगा, एक जानवर कब दुखी होता होगा? व्हेन ही रिमेंबर्स हिज फैमिली मेंबर्स, जब उनको अपने परिवार के सदस्यों की याद आएगी, है ना? एंड इफ आई हैड अ चांस, अगर मुझे मौका मिले, इफ आई हैड अ चांस, आई वुड रन अवे इनटू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ। एक फ्री लाइफ जीने के लिए मैं वापस जंगलों में भाग जाऊंगा। एंड आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्हेन समवन टीजेस मी, जब कोई मुझे चिढ़ाता है, जब कोई मुझे परेशान करता है। ओके, सो दिस वाज योर पेज नंबर 19, एंड नाउ स्टूडेंट्स we will discuss about the 4 types of snakes which we have in our book. Here on page number 20 you have a report, so let us see it once under the topic do you know. क्या आप जानते हो? Do you know, क्या आपको पता है? Okay, do you know of the many kinds of snakes found in our country? हमारे देश में बहुत तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं। Only 4 types of snakes are poisonous, and out of these huge variety of snakes, जो विशाल रेंज है हमारे देश में स्नेक्स की, सांपों की, उनमें केवल 4 तरह के स्नेक्स पॉइजनस होते हैं। एंड दीज आर कोबरा, कॉमन कैट, रसेल्स वाइपर, जिसको हम दुबोया भी कहते हैं, और 4th है सॉ स्केल्ड वाइपर। तो फर्स्ट वन इज कोबरा, कॉमन कैट, रसेल्स वाइपर या दुबोया, और 4th है सॉ स्केल्ड वाइपर। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मेन पॉइजनस स्नेक्स in the huge variety of snakes which are found in our country. हमारे देश में जो सांपों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, जो वेराइटीज हैं, उनमें केवल ये 4 तरह के स्नेक्स पॉइजनस होते हैं। और स्नेक हैज 2 hollow teeth, और हर सांप के पास 2 खोखले दांत होते हैं जिनको हम उनके फैंग्स कहते हैं। When it bites, the poison enters the person's body, और जब एक सांप काट लेता है तो पॉइजन इसी हॉलो टीथ के थ्रू, इसी फैंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। एंड देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, और हर स्नेक बाइट के लिए एक मेडिसिन है। ओके, और ये स्नेक बाइट्स की मेडिसिन कैसे बनती है बेटा? दीज मेडिसिन आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, और ये जो मेडिसिन है स्नेक बाइट्स की, ये भी स्नेक्स के पॉइजन से ही बनती हैं। And it is available in all government hospitals, और जितनी भी स्नेक्स बाइट्स की मेडिसिन है ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल